students, welcome to biology class of StudyGist. Today we'll continue with the chapter which we have started, tissues. In this class, the topics which will be covered, these are the types of connective tissues, loose and dense connective tissue, adipose tissue or fat tissue, skeletal tissues, and one fluid connective tissue, that is blood. In this class we'll discuss that. Okay, so before we start today's class, let's tell you something about us. As you can see on the screen that this is our YouTube channel, StudyGist Academy. Do subscribe our channel, like us our Facebook page, join with us through Telegram channel. That is the name of the channel is StudyGist School 7 to 10. In this channel, you will get each and every kind of update about the live classes, about the study materials. So do join this channel. Follow us on Instagram, and you can also join with us through this WhatsApp community. And for more updates, you can visit our website www.studygist.in. Okay, this is our app, StudyGist app. It is freely available in Google Play Store. You can directly go there to download it, and it's a very user-friendly app. Every kind of class conduction, these stuff are done through this app only. Okay. This is how our YouTube channel looks like. So after subscribing our channel, don't forget to hit the bell icon, because for this, if any new stuff, new videos will be uploaded in our channel, you will be getting an instant notification. Okay, and this is how our Facebook page looks like. So like our page. Now without any further delay, let's move on to the class. Okay, so the first connective tissue that we will discuss, that is the areolar or loose connective tissue. Wait a minute. Okay, so what is it? In this picture you can see how it looks like. Okay, here some fibers you can see, macrophage you can see, and fibroblasts. So what are these? We will discuss one by one. How its nature, how these tissue are. This tissue is loose in nature, as the name suggests. That loose, it is loosely bound tissue, and it's a cellular tissue present within the cell. That's why it's a cellular connective tissue. Okay, two types of fibers are found here. One is collagen fiber, that is known as white fiber, and apart from the white fiber there is yellow fiber. It's elastic in nature, and that's why its name is elastin. All right. And in the matrix there are several kinds of irregularly shaped cells. These irregularly shaped cells are the fibroblast. Okay, and some of them they are called macrophage. Macrophage, you know, these cells they can engulf. क्या करता है ये सब सेल? ये मैक्रोफाजेस जो होता है वो जो दूसरे जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जो बैक्टीरियाज आते हैं, उसको एनगल्फ कर लेता है. ओके, एनगल्फ कर लेने से इससे इन्फेक्शन जो है वो दूर हो जाता है. बिकॉज इन दिस बाय एनगल्फिंग, बाय ईटिंग, द बैक्टीरिया इज किल्ड. ओके, और इसके बाद है कि वेयर दीज टिश्यूज आर फाउंड. ओके, दीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू. मतलब बॉडी के बहुत जगह रहता है, and it helps to join the skins to the muscle and also fills the spaces inside the organ and found in the muscle, blood vessel and the nerves. जो inside जो organs में जो feeling होता है, organ के अंदर जो part रहता है उसको feel करने में help करता है. It is a packing kind of tissue, loosely bound packing kind of tissue. All right. So what are these functions? It acts as the supporting and packing tissue. Packing मैंने पहले ही कहा कि organs के बीच में जो जगह रहता है, the inter space that is filled by this tissue. Okay, this areolar or loose connective tissue. And in this way it is supporting also. Packing से ये support भी provide करता है, and it is present between the organs lying in the body cavity. और क्या है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्मॉल ब्लड वेसल्स. और ये जो हमारा जो टिश्यूज़ है, इंजरी के बाद क्या होता है, कोई भी इंजरी के बाद जो टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाता है. These are killed somehow, right? Due to the injury, tissues are killed.
and tissues are damaged. Okay, and these damaged tissues must be repaired. So by which type of tissues it will be replaced? It will be replaced by this areolar loose connective tissue. And it also helps to combat the foreign टॉक्सिन्स, बाहर से टॉक्सिन्स आता है उसको कंबाट करने में, मतलब उसके अगेंस्ट में फाइट करने में हेल्प करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करने में, इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन टॉक्सिन्स एंड इट फिक्सेस द अंडरलाइन स्किन टू द अंडरलाइन मसल्स. जो स्किन है उसको, उसके नीचे जो मसल है, स्किन द आउटर पार्ट एंड द मसल जस्ट beneath the skin layer, it helps to fix that. Alright. अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद नाउ वी कम टू द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. डेंस मतलब क्या होता है? नो स्पेस, लूज नहीं रहेगा, बहुत पास रहेगा, राइट. सो इट्स अ fibrous connective tissue and characterized by order densely packed collection of the fibers and the cell. यहाँ पर पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ही डेंसली पैक्ड है. ऐसा नहीं कि बहुत स्पेस है, स्पेस नहीं है. ओके, तो डेंसली पैक्ड है. एंड इट्स प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट इज टेंडन एंड लिगामेंट. ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो फर्स्टली कमिंग टू द टेंडन. What are tendons? These are strong, inelastic structure and it helps to join the skeletal muscle to the bones. मतलब टेंडन एक ऐसा dense regular connective tissue है which helps to join the bones with the muscles. Okay? यहाँ पर देखो, this is the muscle and this is one bone. And who is joining these two? Tendon. Tendon helps to join the muscle with the bone. Alright, it is a white fibrous tissue which has great strength but limited flexibility. Flexibility जो होता है वो एक limitation रहता है उसका, right? And it consists of parallel bundles of collagen fiber between which they are present. क्या present है इसमें? Some rows of fibroblast and collagen fibers are bounded by areolar connecting tissue. Okay? तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनइलास्टिक होता है और इट हेल्प्स टू जॉइन द स्केलेटल मसल अलॉन्ग विद द बोन्स. नाउ कमिंग टू द लिगामेंट्स. देखो, दिस इज द प्लेस वेयर लिगामेंट्स आर फाउंड. दिस इज द एंकल जॉइंट, राइट? सो दीज आर इलास्टिक फाइबर्स. टेंडन वॉज इनइलास्टिक बट लिगामेंट्स आर इलास्टिक. नी जो मूवमेंट होता है, अगर इस जंक्शन में लिगामेंट प्रेजेंट है तो इस जंक्शन को, दिस जोन वी कैन मूव, राइट? ये जोन को हम लोग मूव कर सकते हैं. मूव कर सकते हैं मतलब क्या? ये जो है वो इलास्टिक, दिस इज इलास्टिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट्स रिटन इट्स हाईली इलास्टिक. इट इज हाईली इलास्टिक. In the ligaments, some elastic and many collagen fiber, कुछ elastic fibers as well as some collagen fibers are bound together by areolar connective tissue. और इसमें जो है फाइब्रोब्लास्ट जो है वो बहुत कंप्रेस्ड रहता है, बहुत लूज नहीं रहता है. ओके, कंप्रेस्ड रहता है, कंप्रेस्ड. एंड लिगामेंट्स दे स्ट्रेंथन द जॉइंट एंड परमिट द नॉर्मल मूवमेंट बट प्रिवेंट ओवर फ्लेक्सिंग और ओवर एक्सटेंशन. जो कि है, देखो, इसका एक्सटेंड करने का क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर ओवर एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, देन स्प्रेन जब एक जगह जो है उसको हम ज़्यादा स्ट्रेच करें, उसका इलास्टिक क्वालिटी है. ये एक इलास्टिक आप लोग लो, इलास्टिक लेके आप लोग उसको खींचो. ओके, आफ्टर पुलिंग इट विल अप टू सर्टन लिमिट ओनली इट कैन शो इट्स क्वालिटी. आफ्टर दैट इट विल लूज इट. तो वही सेम चीज़ हम लोग की बॉडी में भी, अगर हम ओवर इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? स्प्रेन विल बी फॉर्म्ड, राइट? तो अब डिफरेंस देखते हैं. टेंडन इज इनइलास्टिक whereas ligament इज इलास्टिक. टेंडन जो है वो मसल के साथ बोन्स का जो कनेक्शन है उसमें हेल्प करता है, whereas ligament हेल्प टू जॉइन टू बोन्स. ठीक है? एंड टेंडन इज मेड अप ऑफ वाइट फाइबर्स और लिगामेंट जो है उसमें वाइट फाइबर भी रहता है और येलो फाइबर भी रहता है, राइट? इलास्टिन भी रहता है इसमें. ऑलराइट, नाउ एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू जो है इसको
लिपिड टिश्यू और फैट टिश्यू भी कहा जाता है. ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फैट टिश्यू. सो इट्स बेसिकली द एग्रीगेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट हो जाता है और वो एडिपोसाइट, फैट जो सेल होता है, फैट सेल्स आर नोन एज एडिपोसाइट्स. व्हाट आर दीज कॉल्ड? दिस इज अ पिक्चर ऑफ फैट टिश्यू. ये जो है इसमें देख रहे हो आप लोग, ये एडिपोसाइट्स कहा जाता है. फैट सेल से बना होता है ये एडिपोस टिश्यू और फैट टिश्यू. And each fat cell is rounded or oval in shape and contains large droplet of fat that almost feels it. Okay, वो totally filled हो जाता है इससे. Correct? And these fat cells are arranged in the form of lobules. अब lobules क्या होता है? Lobules are circular, small circular structure. इसमें जो है वो fat deposited रहता है. कहाँ पर रहेगा? Fat tissue will be deposited within this lobule. This is the lobular structure or lobule. यहाँ पर जो है वो fat tissue is present inside it. Okay. और क्या है? The fat cells are arranged in lobules separated by the partition of collagen and elastin fibers. अब ये एक lobule है, दूसरा lobule यहाँ पर है, तीसरा lobule मान लो यहाँ पर है. तो इसमें सेपरेशन कौन देता है? इसमें सेपरेट ये कैसे रहता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर जो है वो प्रेजेंट रहता है. तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए ये जो सेल्स है इसमें जो पार्टीशन होता है एक दूसरे से अलग रहता है. इट गेट्स सेपरेटेड, रिमेन सेपरेटेड. ओके, and these partitions carry blood vessels of lobules. यहाँ पर इसका जो lobule का जो blood vessel है, these blood vessels are carried by or held by collagen and elastin fibers. अब कहाँ रहता है ये? This is one very abundant below the skin. Skin के ठीक नीचे. This is suppose a skin layer. Okay, skin के ठीक नीचे ये स्किन है. ओके, स्किन के ठीक नीचे प्रेजेंट रहता है ये एडिपोस. एडिपोस इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेयर ऑफ स्किन. ऑलराइट. और जो इंटरनल ऑर्गन्स रहता है जैसे कि किडनी, उसके चारों तरफ, एंड इन द येलो बोन मैरो. ऑलराइट. अब व्हाट आर द फंक्शंस? फैट रिजर्वर की तरह काम करता है बिकॉज दिस इज अ फैट टिश्यू. यहाँ पर देखो ये फैट टिश्यू है, ऑयल कंटेनिंग टिश्यू. सो दिस विल एक्ट एज अ फैट रिजर्वर. ठीक है. एंड ये क्या करता है? ये एक these limbs are getting proper shape provided by the adipose tissue. all right. और ये जो विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स किसको कहा जाता है? जो ऑर्गन inside our body, the organs which are present inside our body, specifically in the abdominal zone. okay, अंदर की तरफ जो रहता है that zone, उस जोन में जो ऑर्गन्स रहता है protected, those are called the visceral organs, and it forms the shock absorbing cushions around the kidneys and the eyeballs. यहाँ भी रहता है. And very importantly it acts as the insulator. insulator कैसे हेल्प करता है, क्यों काम करता है? देखो, being a poor conductor of heat, it reduces heat loss from the body. मतलब ये जो फैट टिश्यू है या फिर एडिपोस टिश्यू है, ये पोर हीट कंडक्टर, हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए इट रिड्यूसेस हीट लॉस बॉडी से जो हीट लॉस है, मतलब बॉडी में हीट बनाए रखता है. ऑलराइट. जिसकी बॉडी में ज़्यादा एडिपोस टिश्यू है उसकी बॉडी के अंदर हीट जो है, गर्मी जो है, वो बहुत अच्छे से बना रहता है. इट हेल्प्स टू गिव वार्म टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी. So in this way it can regulate the temperature of our body also. Next is skeletal tissue. यहाँ देखो, skeletal tissue जो है वो एक supporting tissue है. Skeletal word, जब skeletal word हम लोग सुनते हैं, क्या word हम लोग के दिमाग में आता है?
स्केलेटन, राइट? जो स्केलेटन होता है वहां से ये वर्ड जो स्केलेटल टिश्यू है वहां पर ही पाया जाएगा. होल स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, दैट मीन्स द स्केलेटल टिश्यू, है कि नहीं? सो इट इंक्लूड्स कार्टिलेज एंड बोन ऑल्सो and form the endoskeleton of a vertebrate body, right? Vertebral column, जी जो ऑर्गेनिज्म है, जिन इंडिविजुअल के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है उन लोगों को वर्टिब्रेट्स कहा जाता है. और ये वर्टिब्रेट्स के जो एंडोस्केलेटन है, स्केलेटन, एंडो मीन्स क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है? तो ये इनसाइड बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है वो वर्टिब्रेट्स की बॉडी में, वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है दैट इज मेड अप ऑफ दिस स्केलेटल टिश्यू. अब फर्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्टिलेज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ये देख सकते हो, ये कार्टिलेज का पिक्चर है. ऐसा दिखता है कार्टिलेज अंडर द माइक्रोस्कोप. व्हाट्स द नेचर ऑफ इट? इट्स अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू which is compact and less vascular and widely spaced out cells. Its extensive matrix is composed of proteins and slightly hardened by the calcium salts. तो ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है और सेल में बहुत ही स्पेस्ड आउट रहता है, वाइड रीजन पे ये रहता है, ओके, स्प्रेड आउट होके रहता है. और इसका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स, द कॉम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज इज प्रोटीन्स, मेनली प्रोटीन्स. और उसमें कुछ जो है कैल्शियम सॉल्ट्स रहता है. कैल्शियम सॉल्ट रहने की वजह से इट गिव्स इट अ बिट सपोर्ट, थोड़ा सा उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है. स्ट्रॉन्ग हम लोग की बॉडी में कहाँ पर बेसिकली कैल्शियम प्रेजेंट रहता है? टीथ, बोन्स. दैट्स वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम दीज आर स्ट्रॉन्ग, ऑलराइट? तो यहाँ पे थोड़ा रहता है कैल्शियम सॉल्ट, इसलिए थोड़ा सा ये भी स्ट्रेंथ इसका बढ़ जाता है. एंड मैट्रिक्स इज सॉलिड, चीज लाइक एंड फॉर्म, बट ऑल्सो स्लाइटली इलास्टिक, ठीक है? तो मैट्रिक्स जो है यहाँ पर इसका सॉलिड मैट्रिक्स है, चीज लाइक है, और इसमें थोड़ी सी जो इलास्टिसिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये रहता है. ओके, एंड दिस अकाउंट्स फॉर द flexible nature or flexibility. The matrix of the cartilage has delicate network of collagen fibers. Collagen fibers जो है, collagen fibers और जो living cells है उसको chondrocyte कहा जाता है, right? इसमें जो रहता है, और उसमें क्या होता है? डेलिकेट नेटवर्क, कार्टिलेज के अंदर कोलाजन फाइबर्स जो है वो एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क जैसा ऐसा नेटवर्क फॉर्म कर देता है. और यहाँ पर जो है मैट्रिक्स में ब्लड वेसल इज टोटली एब्सेंट. नेक्स्ट, ऑकरेंस. कार्टिलेज इज लोकेटेड इन द फॉलोइंग पार्ट्स, जस्ट ईयर पिना, नोज टिप, एपिग्लॉटिस. देखो ये नोज में, नोज का जो दिस पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज मेड अप ऑफ बोन, बट दिस पार्ट, द लोअर पार्ट, दिस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दीज आर फ्लेक्सिबल, वी कैन मूव इट, सो दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. फंक्शन क्या है? तो ये प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. फ्लेक्सिबल तो ये है, दिस वी कैन मूव दिस टिप पोर्शन ऑफ द नोज और द ईयर पिना. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सॉफ्ट बोन, वी कैन से सॉफ्ट बोन. कार्टिलेज फॉर कॉमन अंडरस्टैंडिंग वी कैन से दिस इज अ सॉफ्ट बोन एंड इट स्मूदन द सर्फेस एट द जॉइंट्स. तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना. ब्रेन और लंग्स जैसा जो बॉडी पार्ट्स है, दोज ऑर्गन्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड इट सर्व्स एज अ स्टोरेज साइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इसका जो सॉल्ट्स होता है बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ओके? एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू एंकर द मसल्स. सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? बोन इज हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल, whereas कार्टिलेज इज फ्लेक्सिबल. बोन इज पोरस, पोर्स रहता है, स्मॉल पोर्स रहता है बोन के अंदर, बट cartilage does not contain any kind of pores, that's why it's called the non-porous one. And blood vessels bones में present रहता है, but in cartilage there is no presence of blood vessels. Matrix of the bone, the composition is protein and mineral salts like calcium and phosphate. Different mineral salts of calcium and phosphate, these are present, and in cartilage it is made up of protein. Fluid connective tissue. What is fluid connective tissue? It is the tissue, it is fluid in nature, liquid in nature, and it helps to link different body parts
and maintains a continuity of the body. इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लड एंड लिम्फ, जिसमें हम लोग आज ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें जो है, इसमें ब्लड प्लाज्मा रहता है और ब्लड सेल रहता है. टू कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, वन इज प्लाज्मा, अनदर पार्ट इज ब्लड सेल्स. ब्लड प्लाज्मा जो है 55% ब्लड प्लाज्मा रहता है एंड रेस्ट ऑफ द 45% is made up of the blood cells. What are the blood cells? RBC, WBC and platelets. RBC or these are also called erythrocytes and full form is red blood cell or red blood corpuscle. And white blood cell, these are also called leukocytes. Apart from these two, the third one is the platelets. So what is RBC? RBC are iron containing blood cell, right? And it is also called respiratory, it is also called respiratory carrier as it contains the respiratory pigment hemoglobin. That's why it is red in color and looks like this. As you can see the shapes, in most of the vertebrates RBC जो है वो oval shape होता है और दोनों साइड से जो है ये convex होता है. And it has the nucleus within it. But among all the vertebrates, if we talk about the mammals, they have some difference. In their case, the shape of the RBC, these are not oval, rather it's circular in shape और ये convex नहीं बल्कि ये concave होता है. दोनों साइड से जो है concave होता है और इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है. ये मेजर डिफरेंस है. So in this way, mammalian erythrocytes have the increased surface area for gaseous exchange and they accommodate more and more hemoglobin. ओके, सो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ दिस WBC आर ऑफ टू टाइप्स, फैगोसाइट्स एंड इम्यूनोसाइट्स. WBC जो है वो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी. बॉडी का जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है. अब ये जो ये जो RBC है, ये जो WBC है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का इसका तरीका जो है वो डिफरेंट हो सकता है. आइदर इट कैन डायरेक्टली फाइट अगेंस्ट इट और फाइट विथ इट एंड डिफीट इट. इन दिस वे इट कैन बी अ विनर एंड other ways is phagocytosis. अब ये phagocytosis क्या है? Suppose this is a foreign particle, foreign agent, okay? Harmful foreign agent. So whenever this presence of the foreign agent will be detected, the WBC will directly go and will engulf it. खा जाएगा उसको. तो in this way, this is called phagocytic activity. This phagocytic nature, phagocytic action से क्या होगा? वो foreign जो germ आया था वो मर जाएगा. In this way, by engulfing them, they will be the winners. In this way, they will protect us from the upcoming foreign infections. ठीक है, अब ये ग्रैनुलोसाइट हो सकता है और एग्रेनुलर हो सकता है. ग्रैनुलोसाइट्स में ये आप लोग पिक्चर में देख सकते हो, यूसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. दीज आर हैविंग डॉट्स ओवर इट. ये ग्रैन्यूल्स रहता है इसमें, इसीलिए इन लोगों को ग्रैन्युलोसाइट कहा जाता है. ओके, और नेक्स्ट इज अग्रैनुलोसाइट और एग्रेन्युलर. ल्यूकोसाइट्स दे डोंट हैव एनी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स ऑन इट. तो इसका एग्जाम्पल है ये मोनोसाइट. इसमें देखो कोई ग्रैन्यूल्स इसके बॉडी के ऊपर कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है. व्हाट आर ब्लड प्लेटलेट्स? दिस इज द थर्ड वन. दिस इज ब्लड प्लेटलेट. दिस इज द पिक्चर. ब्लड प्लेटलेट्स जो है अन्यूक्लिएटेड है. ये किस में हेल्प करता है? मेन फंक्शन इज ब्लड कोआगुलेशन. ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है. इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं रहता है. दीज आर द फ्रेजाइल fragments of the giant bone marrow cells and these are also called megakaryocytes. Alright. Okay. So what are the functions where these are present? These are present in arteries, veins and capillaries and forming the whole networking in the
circulatory system. So what are the functions? Blood helps to transport the nutrients, hormones, vitamin throughout the body to the tissues, and also transport the excretory or this removing materials from the tissues to the kidney and the liver. And red blood cell जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, so oxidation and of the food stuff and all. WBC जो है वो immunity provide करता है by engulfing bacteria or by defeating them, by fighting against them, destroying the foreign bodies. और blood platelets जो है वो site of injury में blood clot करके help करता है. Alright? So this is all about today. Next day we'll continue with the rest of the portions of the chapter. Okay? Thank you.